یہ لڑکی کس جرم میں اندر آئی ہے؟ ایس ایس پی داور نے جیل میں بیٹھی لڑکی کو دیکھا تھا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس وہ ہیرے کی طرح دمک رہی تھی۔ سر، اس پر شوہر کے قتل کا الزام ہے، کانسٹیبل امجد نے اسے آگاہ کیا تھا۔ وہ نینا ہاشمی تھی۔ اپنے باپ کے کہنے پر اس نے ایک ذہنی مریض سے شادی کی تھی جو خود ہی زہریلی شراب پی کر مر گیا تھا، لیکن اس کے قتل کا الزام نینا پر لگا تھا۔ ایس پی داور جیل کے اندر آیا تو نینا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سر، میں بے قصور ہوں، مجھے بچا لیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بچاؤں گا، لیکن ایک شرط پر۔ ایس پی داور کی نظر کالے کپڑوں میں کھلتے اس کے وجود پر تھی۔ نینا ہاشمی نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا بھی دن آئے گا جب وہ تنے تنہا جیل کی سلاخوں کے پیچھے سر جھکائے بیٹھی ہوگی۔ وہ تو ایک زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، اس کے چہرے سے کبھی مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہوتی تھی، پھر کیسے زندگی اس سے اس کی ساری خوشیاں چھین سکتی تھی، اسے یوں رونے کے لیے چھوڑ سکتی تھی۔ نینا ہاشمی نے سر اٹھا کر جیل کی دیواروں کی طرف دیکھا تھا۔ جیل کی دیواروں پر جانے ہی کتنی ہی ان کہی کہانیاں لکھی ہوئی تھی۔ نینا کو یکدم ہی ان دیواروں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ خود میں مزید سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے اپنی ہی ہنسی کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اس نے دہشت سے اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ تو پچھلے 1 سال سے مسکرائی تک نہیں تھی، تو پھر یہ ہنسی کی آواز کس کی تھی؟ اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ نینا نے منہ کھول کر لمبی لمبی سانسیں لینے کی کوشش کی۔ اس نے بے اختیار ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور خود کی سانسیں نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر ہنسی کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ نینا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھا تھا، مگر وہاں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بس اس کے سر پر ہی زرد رنگ کا بلب ایک تار کے ذریعے ٹنگا ہوا تھا، جس کی مدھم سے زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں اسے کسی کی قدموں کی چاپ اپنی جانب آتی سنائی دی، مگر باہر اندھیرا اس قدر تھا کہ وہ ٹھیک سے کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ بس اس کی نظریں قدموں کی چاپ کی آواز پر جمی ہوئی تھی، اور پھر یہ چاپ بھی بند ہو گئی، مگر کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا۔ نینا آج صبح ہی اس جیل میں لائی گئی تھی۔ نینا اپنی جگہ پر سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اندھیرے سے اسے خوف آ رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کوئی تھا جو اندھیرے کی سمت کھڑا اسے بے خودی سے تک رہا تھا۔ اس نے اتنا مکمل حسن اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ شاید سانس لینا بھی بھول گیا۔ نینا کالے کپڑوں میں ملبوس ہیرے کی مانند دمک رہی تھی۔ گزرے اذیت کے شب و روز نے اس کا حسن بہت حد تک کملا دیا تھا، مگر آج بھی وہ اتنی ہی حسین تھی کہ دیکھنے والوں کو سانس تک روکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اور یہی کچھ ایس ایس پی داور کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ اس لڑکے کے حسن کے سحر میں گم سا ہو گیا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی کوئی لڑکی اس قدر حسین اور معصوم بھی ہو سکتی ہے، وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ نینا کا سر لمحے لمحے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پیروں کی لرزش واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ لڑکی کس جرم میں اندر آئی ہے؟ ایس ایس پی داور نے نینا ہاشمی پر نظریں جمائی اپنے کانسٹیبل سے پوچھا۔ کانسٹیبل فوراً ہی اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ سر، یہ لڑکی آج صبح ہی یہاں لائی گئی ہے، اس پر اس کے شوہر کے قتل کا الزام ہے۔ کانسٹیبل امجد نے ایس ایس پی داور کو نینا ہاشمی کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایس ایس پی داور نے حیران نظروں سے اس حسن کی دیوی کو دیکھا جو بار بار سمٹ کر بیٹھ رہی تھی۔ ایس ایس پی داور نے نینا کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ باہر سے تالا کھول کر اندر داخل ہوا تو نینا فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک آدمی کو اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔
नैना इस वक्त एक सहमी हुई हिरनी की मानिंद लग रही थी। अंधेरे में किसी हीरे की मानिंद दमकता उसका हुस्न किसी को भी अपनी जानिब माइल कर सकता था। एसएसपी डावर नैना के सामने अपने सीने पर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। सर, प्लीज, मैं बेकसूर हूं, आप मुझे बचा लें, मुझे यहाँ से निकाल दें, मैं यहाँ नहीं रह सकती, नैना ने रोंदे हुए लहजे में कहा था। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की मानिंद उसके गालों पर फिसल रहे थे। एसएसपी डावर का यकदम ही दिल किया कि वो उसके आंसुओं को अपनी पोरों पर चुन ले। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त है, एसएसपी डावर ने भारी लहजे में कहा था। नैना ने हैरानी से उसे देखा। वो बहुत ही आराम से उसे यहाँ से निकालने पर राजी हो गया। एसएसपी डावर की नजरें काले कपड़ों में खिलते उसके वजूद पर थी। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। अगर तुम इस बात के लिए राजी हो तो मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकाल सकता हूँ, डावर ने भारी लहजे में कहा। नैना का वजूद सन्नाटों की जद में आ गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसे कुएं से निकलकर खाई में गिरना पड़ेगा, मगर अब वो यहाँ बुरी तरह फंस गई थी। वो अगर यहाँ रहती तब भी महफूज नहीं थी, और यहाँ से बाहर जाती वो तब भी महफूज नहीं थी। वो कुछ लम्हों तक सोचती रही और फिर वो एसएसपी डावर के साथ जाने के लिए राजी हो गई। इसके सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं था, वरना वो यहाँ ही खौफ और दहशत से मर जाती और किसी को खबर भी ना होती। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं किसी भी कीमत पर उस शख्स से शादी नहीं करूंगी, नैना अपने माँ बाप के सामने खड़ी नम आंखों से कह रही थी। उसकी माँ ने भी अपनी बेटी को देखा था, मगर वो यहाँ पर आकर बेबस हो जाती थी। वो चाहकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। अम्मी, आप तो समझे मेरी बात को। वो शख्स जहनी मरीज है, वो किसी भी लड़की के साथ शादी करने के काबिल नहीं है। फिर आप लोग कैसे मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हैं? नैना की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कह दिया है, तेरी शादी मैं इमरान से ही करूंगा, और तेरा और तेरी माँ का कोई बहाना नहीं सुनूंगा। साबिर ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहरज़दा नजरों से नैना को देखा। अब्बू, आप कैसे मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकते हैं? नैना के लहजे में बेयकीनी और कर्ब था। वो चाहकर भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके घर वाले उसकी शादी एक जहनी मरीज शख्स से करना चाहते हैं। मैंने कह दिया है कि मैं हरगिज ये शादी नहीं करूंगी। अगर आपको इमरान की शादी करने का इतना ही शौक है तो आप अपनी बेटी की शादी इससे कर दें। मुझे क्यों बलि चढ़ाई जा रही है? नैना भी आज पहली मर्तबा साबिर के सामने खड़ी हो गई थी। उसने आज तक साबिर की किसी ज्यादती पर उसे कुछ नहीं कहा था। साबिर ने घूर कर नैना को देखा और फिर उसकी तोपों का रुख हिफ्जा की तरफ हुआ। तेरी वजह से ही तेरी बेटी की इतनी जबान निकल आई है। मैंने तुम दोनों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और ये आज मेरे ही सामने खड़े होकर जबान चला रही है। ये सब कुछ तेरी ही शय पर कर रही है, साबिर ने तेज आवाज में हिफ्जा को मुखातिब करके कहा था। हिफ्जा ने जख्मी नजरों से साबिर की तरफ देखा, मगर वो कुछ भी कहने से बाज रही, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने इस वक्त साबिर से कुछ भी कहा तो वो इस पर हाथ भी उठाने से गुरेज नहीं करेगा। और हिफ्जा इस वक्त बीमार थी, वो साबिर की मार नहीं सह सकती थी। उसी खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। अब्बू, आपने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैं अपने बलबोते पर सब कुछ करती आई हूँ। आपने हमेशा अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया है। नैना भी आज सारे हिसाब बराबर करने के लिए खड़ी थी। उसने भी साबिर को आईना दिखाया था। तेरा सगा बाप तो तुझे घर से निकाल चुका था। ये मैं ही था जिसने तुझे इस घर में रहने की जगह दी, और तू एहसान फरामोश लड़की आज मेरे ही सामने खड़े होकर जबान चला रही है। तुझे जरा भी लिहाज नहीं। अगर मैं तुझे इस घर में नहीं रखता
तो आज तू कहाँ जाती? साबिर ने जवाबन लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचाते हुए कहा था। ये वो ताना था जो नैना बचपन से लेकर आज तक सुनती आई थी। वो कभी इस हकीकत से अपना दामन नहीं छुड़ा सकती थी कि साबिर उसका सौतेला बाप था। उसने नैना पर बहुत बड़ा एहसान किया था कि उसे इस घर में रहने के लिए जगह दी थी। नैना बचपन से लेकर अब तक इस एहसान का बोझ उठाए हुए थी। नैना ने शिकायती नजरों से हिफ्जा की तरफ देखा था। हिफ्जा अपनी बेटी से मजीद शर्मिंदा हो गई थी। पहले शौहर ने हिफ्जा को तलाक दे दी थी और वजह यह थी कि हिफ्जा ने एक बेटी को जन्म दिया था। इसलिए हिफ्जा का पहला शौहर इसे अस्पताल में ही तलाक देकर चला गया। हिफ्जा अपनी बेटी को लिए लुटी पिटी माँ बाप की दहलीज पर आ गई। हिफ्जा के बाप के लिए वो सिर्फ एक बोझ थी। इसीलिए जैसे ही साबिर का रिश्ता आया, हिफ्जा के बाप ने हाँ कर दी। हालांकि साबिर हिफ्जा से दुगनी उम्र का था, मगर हिफ्जा के बाप के लिए ये रिश्ता भी गनीमत था। इसलिए उसने फौरन ही हामी भर ली और हिफ्जा को साबिर के साथ रुखसत कर दिया। हिफ्जा नैना को अपने साथ लेकर आई थी, मगर साबिर नैना की मौजूदगी से खुश नहीं था। मगर इतनी छोटी बच्ची माँ के बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए साबिर बस उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर था। मगर उसने पहले ही हिफ्जा से कह दिया था कि वो उसकी बेटी का कोई भी खर्च नहीं उठाएगा। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसने नैना को इस घर में रहने की जगह दे दी है, यही उसके लिए बहुत है। इससे ज्यादा वो उसकी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता। हिफ्जा साबिर औरत थी। उसकी बात सुनकर सब्र के घूंट भर कर रह गई। उसने खुद ही सिलाइयां करके नैना को स्कूल में दाखिल करवाया था और फिर जब नैना ने होश संभाला तो वो खुद ही अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने लगी। हालांकि उसी के सामने साबिर अपनी बेटियों के लिए भर भर कर चीजें लाता, उनकी हर फरमाइश पूरी करता और नैना एक कोने में खड़ी बस ये सब कुछ देखती रहती। उसका भी जी चाहता था कि उसे भी बाप की मोहब्बत मिले, मगर साबिर का दिल इस मामले में बहुत छोटा था। वो नैना को इस घर में रहने दे रहा था, यही उसकी नजर में बहुत बड़ी बात थी। और वक्तन फवक्तन वो नैना को जताता रहता कि उसका नैना पर बहुत बड़ा एहसान है, वरना उसका सगा बाप तो उससे पीछा छुड़ा चुका है। नैना भी साबिर को देख कर रह जाती। नैना को तो अपने सगे बाप की शक्ल तक याद नहीं थी। साबिर ने ही बचपन से उसके दिमाग में ये बात डाली थी कि वो उसका सौतेला बाप है और वो उसके घर में रह रही है। हिफ्जा ये सब देखकर सब्र के घूंट भर कर रह जाती थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो दूसरी बार तलाक लेकर अपने साथ मजीद 4 बच्चों को लेकर कहीं नहीं जा सकती थी। नैना ने बेबसी से हिफ्जा को देखा था, मगर हिफ्जा बिल्कुल खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। उसके चेहरे पर अजियत रकम थी। साफ जाहिर था कि वो साबिर के फैसले से खुश नहीं है, मगर फिर भी जाने क्यों साबिर के सामने बिल्कुल खामोश सर झुकाकर बैठी हुई थी। हिफ्जा जान गई थी कि उसे अपनी ही जंग खुद लड़नी होगी। आप कुछ भी कर लें, मैं उस ज़हनी मरीज इंसान से हरगिज शादी नहीं करूंगी। हिफ्जा ने अपना बैग संभालते हुए कहा था, क्योंकि उसे कॉलेज जाने की देर हो रही थी। वो अब मजीद साबिर से बहस करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। तेरी शादी इमरान से ही होगी। अगर तूने ज्यादा नखरे निकाले तो मैं तेरी माँ को तलाक दे दूंगा। साबिर ने नाश्ता करते हुए नैना से सर्द लहजे में कहा था। बाहर जाती नैना के कदम जमीन में गड़ से गए। हिफ्जा ने भी तड़प कर साबिर की तरफ देखा। वो कितनी आराम से इसे तलाक की धमकी दे रहा था। उसकी सालों की रियाजत यूं बेकार नहीं हो सकती थी। उसने अपना घर जोड़ने के लिए कितनी मेहनत की थी। सालों साबिर की कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त किया था, और अब यूं इस उम्र में आकर वो एक बार फिर से तलाक का दाग खुद पर नहीं लगा सकती थी। हिफ्जा जाने कितने ही लम्हों के लिए सुन सी हो गई। उसने साबिर को नहीं देखा, बल्कि उसकी नजरें नैना पर जमी थी। नैना ने भी अपनी माँ की तरफ देखा था।
اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ بے بس ہو گئی۔ وہ اپنی خوشیاں پانے کے لیے اپنی ماں کے اوپر طلاق کا داغ نہیں لگوا سکتی تھی۔ صابر جانتا تھا کہ یہ بات نینا کبھی برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے اس نے حفصہ کو طلاق دینے کی دھمکی دی تھی۔ اب تیری مرضی ہے، تو عمران سے شادی کرتی ہے یا پھر اپنی ماں کو طلاق دلوائے گی؟ صابر نے مسکراتے ہوئے نینا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھائی طنزیہ مسکراہٹ نے نینا کو بری طرح سے سلگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خود پر ضبط کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ حفصہ کا تاریک پڑتا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اور اس کی ماں یہیں آ کر کمزور پڑ جاتی تھی۔ نینا کالج آ گئی مگر یہاں آ کر بھی وہ پریشان رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رہ رہ کر حفصہ کا چہرہ آ رہا تھا۔ جب صابر نے اسے طلاق دینے کی بات کی تھی تو کس طرح سے حفصہ نے امید سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ ایک نینا ہی تھی جو حفصہ کو بچا سکتی تھی، ورنہ طلاق کا داغ اس کے دامن پر لگ جاتا۔ اور پھر جب نینا نے دوبارہ سے عمران سے شادی کرنے سے انکار کیا تو صابر نے بری طرح سے حفصہ کو مارا تھا اور ایک طلاق دے دی تھی۔ حفصہ نے روتے سسکتے نینا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور یہاں آ کر نینا بری طرح بے بس ہو گئی۔ وہ جانے کتنی ہی دیر اپنی ماں کے سینے سے لگی آنسو بہاتی رہی۔ آج اس کی ماں کا یہ حشر اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ صابر نینا پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، حفصہ اسے بچانے کے لیے ہی آئی تھی۔ صابر نے حفصہ کو ہی بری طرح سے زد و کوب کر دیا۔ حفصہ اپنے زخموں پر ساری رات کراہتی رہی تھی۔ اس کی چارپائی سے لگی بیٹھی نینا خشک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نینا نے عمران سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ اس رات وہ سوچ چکی تھی کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی پلٹ کر اس گھر میں نہیں آئے گی۔ نینا کا نکاح عمران سے ہو چکا تھا۔ نینا دلہن بنی بیٹھی تھی جب صابر خوش خوش کمرے میں آیا اور حفصہ سے مخاطب ہوا۔ اپنی بیٹی کو بہت اچھی طرح سے سمجھا دے، اس کی جتنی ذمہ داری میں نے اٹھانی تھی اٹھا لی، اب اس کو کبھی بھی پلٹ کر اس گھر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر یہ دوبارہ اس گھر میں آئی تو میں اس بار واقعی میں تجھے فارغ کر دوں گا۔ صابر نے حفصہ کو ایک بار پھر سے طلاق کی دھمکی دی تھی۔ نینا بس خالی خالی نظروں سے صابر کو دیکھتی رہی۔ کیا سارے سوتیلے باپ ایسے ہی ہوتے ہیں؟ وہ صرف سوچ سکی تھی، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نینا کو اس روز اپنے سگے باپ کی کمی بے حد محسوس ہوئی۔ جانے وہ کیسا باپ تھا جو بیٹی پیدا ہونے پر اس کی ماں کو طلاق دے چکا تھا۔ اس کے سگے باپ نے تو پیدا ہونے کے بعد کبھی نینا کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ پھر جانے کیوں آج نینا کو اس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ رخصتی کے وقت نینا اپنی ماں کے گلے لگی تو اس کا دل تک خالی ہو گیا۔ کیا مائیں ایسی بھی مجبور ہوتی ہیں کہ جانتے پوچھتے اپنی بیٹی کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیتی ہیں جو ذہنی مریض ہو، جس کے ٹھیک ہونے کی کبھی کوئی آثار نہ ہو؟ نینا رخصت ہو کر عمران کے گھر آ گئی تھی اور یہاں سے ایک نئی کہانی کا آغاز ہوا۔ سوتیلے باپ کا صفحہ زندگی کی کتاب سے پھاڑا جا چکا تھا اور اب وہاں ایک ذہنی مریض شوہر کا ایک نیا باب شروع ہو رہا تھا۔ عمران صابر کا رشتے میں چچا زاد بھائی تھا، جس سے صابر نے نینا کی شادی کی تھی اور عمر میں صابر سے 2-4 سال ہی چھوٹا تھا۔ عمران کی نظریں کافی عرصے سے نینا پر تھی۔ وہ اکثر صابر سے ملنے اس کے گھر آتا رہتا تھا۔ وہیں پر اس نے نازک سی نینا کو دیکھا اور صابر سے نینا اور اپنی شادی کی بات کر دی۔ یہ پورا ہی خاندان جانتا تھا کہ عمران ایک ذہنی مریض ہے، جب بھی اس کی دونوں بیویاں اسے چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ مگر عمران نے صابر کو پیسوں کا لالچ دیا تھا۔ اس نے صابر سے وعدہ کیا تھا کہ اگر صابر نینا کی شادی اس سے کروا دے گا تو وہ صابر کی دکان میں مال ڈلوا دے گا۔ صابر نے اسی لالچ میں زبردستی نینا کی شادی عمران سے کروا دی۔ نینا روتے دھوتے رخصت ہو کر عمران کے گھر آ گئی۔ نینا اب عمران کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی،
मगर उसके कमरे को देखकर ये मालूम नहीं होता था कि ये किसी नई नवेली दुल्हन का कमरा हो सकता है। इमरान ने साबिर से जहेज भी नहीं लिया था और ना ही साबिर ने कोई एक चीज भी नैना को दी थी। बस हिफ्जा ने नैना के पुराने कपड़े ही एक बैग में रखकर उसके हवाले कर दिए थे और वो बैग इस वक्त कमरे के एक कोने में उल्टा पड़ा हुआ था। नैना ने नजरें उठाकर कमरे को देखा। कमरे की दीवारों का रंग जगह जगह से उड़ चुका था। शायद कभी दीवारों का रंग सफेद रहा होगा, अब तो बिल्कुल ही अपना रंग तब्दील कर चुकी थी। नैना जिस पलंग पर बैठी हुई थी उसका एक पाया टूट चुका था, जिसे ईंटें लगाकर रोका गया था, और सामने की दीवार में एक धुंधला सा आईना नस्ब था जिसमें नैना की परछाई दिखाई दे रही थी। नैना ने दुल्हन बने हुए अपना रूप एक बार भी नहीं देखा था। एक कोने में लकड़ी की छोटी सी अलमारी रखी थी जिसके दोनों पट आधे खुले हुए थे और उसमें से कपड़े झांक रहे थे। नैना को उन कपड़ों की मानिंद ही अपनी जिंदगी बिखरी से दिखाई दी। इसी असना में इमरान दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। नैना सुकड़ सिमट कर बैठ गई थी। उसका दिल तेज रफ्तारी से धड़कने लगा। उसे इमरान से खौफ महसूस हो रहा था। इमरान ने एक नजर अपने कमरे में मौजूद अपनी तीसरी बीवी को देखा जिसकी उम्र महज 18 साल थी। मेरे कपड़े निकाल कर उठकर मुझे दे, इस शेरवानी में गर्मी लग रही है। इमरान ने दुरुस्त लहजे में नैना को मुखातिब किया। नैना हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठी। इमरान ने अपनी शेरवानी उतार कर जमीन पर डाल दी। नैना अलमारी की तरफ बढ़ी थी और उसमें से एक जोड़ा निकालकर इमरान की तरफ बढ़ाया। इमरान ने एक नजर नैना के हाथ में थामे हुए जोड़े की तरफ देखा और फिर नैना के हाथ से वो सूट गुस्से में झपट कर उसके मुंह पर दे मारा। नैना सदमे की कैफियत में थी, इमरान को देख रही थी। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाकर नहीं भेजा क्या? तुझे इतना भी ढंग नहीं कि शौहर को पहले सलाम करते हैं? इमरान ने गजबनाक लहजे में कहा तो नैना का दिल काम कर रह गया। इमरान उसके हाथ से कपड़े लेकर बदलने चला गया। नैना बस उसे देख कर रह गई। उस रोज के बाद नैना की जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। इमरान वाकई में जहनी मरीज साबित हुआ था। वो एक एक काम को नैना से 10 बार करवाता, मगर फिर भी उसकी तसल्ली नहीं होती तो वो नैना को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता। नैना की सास खामोशी से ये सब देखती रहती थी, बल्कि इमरान घर आता तो नैना की झूठी सच्ची शिकायतें लगवाकर उसे मजीद पिटवाती थी। उन दोनों ने नैना की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था, मगर नैना इसी घर में रहने के लिए मजबूर थी। वो अब वापस पलट कर नहीं जा सकती थी। शादी के एक हफ्ते बाद ही नैना को अंदाजा हुआ कि इमरान ना सिर्फ जहनी मरीज है बल्कि वो शराबी भी है। वो रोज रात को शराब पीकर घर आता और शराब के नशे में नैना पर बुरी तरह से तशद्दुद करता। नैना एक जहनी मरीज के साथ रहकर बुरी तरह से परेशान हो गई थी। इमरान किसी बात से खुश ही नहीं होता था। वो अक्सर नैना से कहता कि कोई उसके सामने खड़ा है और उससे बातें कर रहा है, तो कभी आईने के सामने खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता। नैना का दिल ये सब देखकर लरस कर लहर जाता था। वो डर के मारे कमरे से निकल जाती। जब इमरान पर दौरे पड़ते तो वो हर चीज को तोड़ना शुरू कर देता और नैना को चीजें उठा उठा कर मारता, जिसकी वजह से अक्सर वो जख्मी भी हो जाती। मगर नैना के पास कोई नहीं था जिसे वो अपने ऊपर हुए सारे मजालिम की कहानी सुना सकती। वो बस मजबूरी के तहत इमरान को बर्दाश्त कर रही थी। अक्सर नैना का दिल चाहता कि वो खुदकुशी कर ले, मगर खौफे खुदा उसे इस चीज से बाज रखता था। जब इमरान नैना के सामने ये सारी हरकतें करता तो वो बुरी तरह से खौफजदा हो जाती, क्योंकि वो जानती थी कि इस सब के बाद इमरान उस पर तशद्दुद करके अपने गुस्से को कम करेगा। यही वो वक्त होता था जब नैना का दिल किसी सूखे पत्ते की मानंद कांप रहा होता था और फिर नैना की दर्द भरी चीखें
पूरे घर में गूंजती, मगर उस घर के मकीनों को इस पर जरा रहम नहीं आता था। वो लोग नैना को एक बेजान चीज समझते थे जिसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। नैना अपनी जिंदगी से बेहद तंग हो गई थी, मगर उसके पास कोई फरार का रास्ता नहीं था। हर तरफ आता अंधेरा दिखाई देता। उस रोज इमरान नशे की हालत में घर आया। नैना उसके इंतजार में जाग रही थी। अगर किसी दिन इमरान के आने से पहले नैना की आंख लग जाती तो इमरान इस बात पर भी उस पर गुस्सा होने लगता और उस पर हाथ उठा लिया करता। इसी वजह से नैना अभी तक जाग रही थी। इमरान नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ घर में दाखिल हुआ। वो पैर कहीं रख रहा था और कहीं पड़ रहा था। नैना उसे सहारा देते हुए कमरे में लाई और पलंग पर नींद दराज हो गया। वो इस कदर नशे में था कि उसकी आंखें तक पूरी नहीं खुल रही थी। उसने नैना से पानी मांगा तो नैना फौरन ही कमरे से बाहर उसके लिए पानी लेने आई। नैना ने पानी का ग्लास इमरान को पकड़ाया था, मगर जाने इमरान को किस बात पर गुस्सा आया कि उसने वही गिलास खींचकर नैना के सर पर मार दिया। नैना अपना सर थाम कर रह गई थी। उसके सर से खून बुरी तरह से रिस रहा था। इसी असना में इमरान को खून की उल्टी हुई और वो वहीं ढह सा गया। नैना ने दहशत भरी नजरों से जमीन पर बिखरे हुए खून को देखा। वो अब अपना दर्द भूल गई। उसके माथे से भी खून रिस रहा था। वो फौरन ही कमरे से बाहर गई और जाकर अपनी सास के कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगी, क्योंकि इमरान की हालत बिगड़ती जा रही थी। क्या मुसीबत पड़ गई तुझे? इस वक्त यूं मेरे कमरे का दरवाजा बजा रही है। नैना की सास नींद से उठकर उस पर बुरी तरह बरहम हो गई। नैना इस कदर खौफजदा हो गई थी कि उसके मुंह से अल्फाज तक नहीं निकल रहे थे। वो कुछ भी कहे बगैर अपनी सास का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले आई। इमरान जमीन पर लेटा बुरी तरह तड़प रहा था। जब इमरान की मां ने ये मंजर देखा तो वो बुरी तरह परेशान होकर इमरान की तरफ बढ़ी, मगर शायद इमरान की सांसें मुकम्मल हो गई थी। उसने उसी वक्त तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। कमरे में यकदम ही सन्नाटा छा गया। नैना फटी फटी नजरों से बेजान पड़े हुए इमरान को देख रही थी, जिसकी आंखें खुली हुई थी। नैना को अपने पैरों से जान निकलती हुई महसूस हुई। नैना की सास ऊंची आवाज में रो रही थी और साथ ही नैना को कोस रही थी। नैना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उसे अपनी सास की कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। वो बस माऊफ होते दिमाग के साथ इमरान को बेजान सा जमीन पर पड़ा हुआ देख रही थी। कुछ ही देर में शोर की आवाज सुनकर सारे मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए। वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। नैना की सास चीख चीख कर सब लोगों से कह रही थी कि नैना ने ही उनके बेटे को जान से मारा है, जबकि नैना खड़ी अजनबी नजरों से ये सब देख रही थी। वो इस कदर खौफजदा हो गई कि अपने लिए कुछ कह नहीं पा रही थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे थे। वो एक कोने में सुखड़ी सिमटी सी बैठी थी। हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था। यहाँ तक कि सुबह हो गई, मगर शायद किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस उनके घर पर पहुंच गई। उसी वक्त साबिर और हिफ्सा भी आए थे, मगर एक लेडी पुलिस कांस्टेबल ने आगे बढ़कर नैना के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। आप लोग मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। नैना को पहली बार होश आया और वो बुरी तरह से चिल्लाई। जब ही नैना की सास उसके ऊपर झपटी थी। इसी ने मेरे बेटे को जान से मारा है, ये देखें, इसके सर पर चोट का निशान है। नैना की सास ने उसे जगड़ते हुए कहा था। हिफ्जा ने नैना को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहा, मगर साबिर ने हिफ्जा का हाथ पकड़कर रोक लिया। पुलिस वाले नैना को अपने साथ ले जाने लगे थे। वो बेबसी से अपनी मां को देख रही थी। हिफ्जा नैना के पास आने को तड़प रही थी, मगर साबिर ने उसका हाथ सख्ती से जकड़ रखा था। नैना ने एक नफरत भरी नजर से साबिर को देखा और फिर पुलिस वालों के साथ चली गई। वहां कोई भी
اس کا یقین کرنے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ اس کی ساس نے اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ کل رات کو عمران نے زہریلی شراب پی لی تھی، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کی ذمہ دار نینا ہرگز نہیں تھی، اور اب وہ صبح سے ہی اس تھانے میں موجود تھی۔ کوئی بھی نینا کو چھڑانے کے لیے نہیں آیا تھا، اسی لیے پولیس والے بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ ایک بے سہارا لڑکی ہے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے نینا نے ایس ایس پی داور کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ یہاں پر ہرگز بھی محفوظ نہیں تھی۔ جانے کیوں وہ ایس ایس پی داور پر بھروسہ کر بیٹھی تھی۔ ایس ایس پی داور اسی رات نینا کو اپنے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ وہ نینا کو ہرگز بھی رات کو وہاں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ خود بھی واقف تھا کہ اگر اس سے اوپر کوئی افسر وہاں آ گیا اور اس کی نظر نینا پر پڑ گئی تو نینا کو اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ جانے کیوں داور کا دل نہ کیا کہ وہ لڑکی مزید ظلم سہے، اسی لیے اس کی حفاظت کرنے کی غرض سے وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ نینا کم عمر تھی اور اوپر سے خوبصورت بھی تھی، یہ بات اس کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی تھی۔ نینا پر اس کے شوہر کے قتل کا بہت سنگین الزام تھا، جس کی وجہ سے نینا کی جلد خلاصی نہیں ہو سکتی تھی۔ نینا کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اسی لیے وہ سالوں تک بھی جیل میں بند رہتی تو کسی کو بھی پرواہ نہ ہوتی۔ ہر رات لوگ اس سے جیل میں استعمال کرتے، یہ دنیا اس پر تنگ کر دی جاتی۔ جب ہی ایس ایس پی داور اسے اپنے ساتھ لے آیا، داور نے جیسے ہی اپنے گھر کا دروازہ کھولا، سامنے ہی ایک 4 سالہ بچی اپنے ہاتھوں میں گڑیا پکڑے کھڑی اس کی منتظر تھی۔ داور جلدی سے اس بچی کی طرف بڑھا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ نینا کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ تم اٹھ کیوں گئی ہو؟ کچھ دیر پہلے ہی تو میں تمہیں سلا کر گیا تھا، داور نے اس 4 سالہ بچی کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ بچی شاید نیند میں تھی، اس نے بنا کچھ کہے اپنے باپ کے سینے پر سر رکھا اور چند ہی لمحوں بعد وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ داور نے اسے آہستگی سے صوفے پر لٹا دیا اور بند دروازے پر کھڑی نینا کی طرف دیکھا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ، داور نے نرم لہجے میں نینا سے کہا۔ نینا جھجکتے ہوئے اندر آ گئی۔ داور نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ کسی روبوٹ کی طرح بیٹھ گئی۔ میں کچھ دیر میں آتا ہوں، اسے سلا کر داور نے نینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور سامنے کمرے میں چلا گیا۔ نینا وہیں سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سے باہر آیا اور سیدھا کچن میں چلا گیا۔ کچھ دیر تک کچن سے کھٹ پھٹ کی آوازیں آتی رہیں۔ وہ کچن سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے وہ ٹرے لے کر نینا کے سامنے رکھ دی۔ وہ کل رات سے بھوکی تھی، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور نہ ہی کسی نے اسے کھانے کا پوچھا تھا۔ کھانے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اسے نہیں مارا، نینا یہ کہتے ہوئے یکدم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ داور نے جانچتی نظروں سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا، جسے دیکھ کر یقین ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا قتل بھی کر سکتی ہے۔ وہ خود ہی مر گیا تھا، وہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میں کیسے اسے مار سکتی ہوں؟ نینا نے ہچکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ اس کا جسم لرز رہا تھا۔ داور نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ ٹھیک ہے، پہلے تم کچھ کھا لو، اس کے بعد بات کرتے ہیں، داور نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے دوبارہ وہاں نہیں جانا، مجھے جیل نہیں جانا۔ نینا جیسے ٹوٹ کر بکھر سے گئی تھی۔ وہ آج پورا دن جیل میں تھی، اس بات نے اس کے دماغ پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہ شاید وہاں مضبوط بنی بیٹھی رہی تھی، مگر اب وہ یہاں آ کر کانچ کی مانند ٹوٹ سی گئی۔ داور نے ٹیبل سے ٹیشو باکس اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ آنسو صاف کرو اور پھر کچھ کھا لو، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔
दावर ने इस बार थोड़े सख्त लहजे में कहा था। नैना ने टिश्यू बॉक्स की तरफ देखा, बस सर झुकाए रोती रही। इस बार दावर ने उसे रोने दिया था। जब वो दिल भर कर रो रो कर थक गई तो खुद ही अपने आंसू साफ करने लगी। कुछ खा लो। दावर ने उसकी तवज्जो एक बार फिर से खाने की तरफ की। नैना ने बमुश्किल चंद ही लुकमे जहर मार किए, फिर उसने खाने पर से हाथ खींच लिया। अब बताओ, क्या सच है? दावर ने नरम लहजे में कहा। मेरी शादी 1 साल पहले हुई थी। मेरे सौतेले बाप ने जानते पूछते इमरान से मेरी शादी की थी। वो जानते थे कि इमरान एक जहरी मरीज है, फिर भी मेरी शादी उससे कर दी क्योंकि मैं उनके लिए बोझ थी। वो मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहते थे। इमरान ने मुझसे शादी करने के बदले उन्हें पैसे दिए थे। इमरान की पहले भी 2 शादियां हो चुकी थीं और उसकी दोनों बीवियां उसे छोड़कर जा चुकी थीं। मैं उसकी तीसरी बीवी थी, मगर वो मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करता, मुझे रोज मारता था। कल रात भी वो शराब पीकर घर आया था। मैंने उसे पानी पिलाया तो उसने वही गिलास मेरे सर पर मार दिया और फिर वो खून की उल्टी करने लगा। मैंने उसकी माँ को बुलाया था, मगर जब तक वो आखिरी सांसें ले रहा था और फिर वो मर गया। मगर मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद ही मर गया। मैं नहीं जानती कि वो कैसे मर गया। नैना एक बार फिर से बुरी तरह रोने लगी। उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया। दावर पुरसोच नजरों से उसे देख रहा था। उसे नैना की बातों में सच्चाई मालूम होने लगी। नैना को देखकर यकीन नहीं हो सकता था कि वो किसी का कत्ल कर सकती है। दावर ने नैना का केस खुद ही लेने का फैसला किया, मगर जब तक वो नैना को थाने में नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए उसे अपने घर में रखने का फैसला कर लिया। नैना खुद भी जेल में नहीं रहना चाहती थी। वो वहां रहकर उन सारे भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकती थी जो उसे नोचने के लिए बैठे हुए थे। दावर ने नैना को रहने के लिए एक कमरा दे दिया। नैना हैरान थी कि जब दावर रात को उसके कमरे में नहीं आया था। नैना तो समझ रही थी दावर उस मेहरबानी के बदले नैना से डिमांड करेगा। वो सारी रात नैना ने जागते हुए गुजार दी थी। उसे हर आहट पर यही लगता था कि वो उसे नोचने के लिए आ गया है, मगर रात सुकून से गुजर गई। सुबह कहीं जाकर नैना की आंख लगी। जब वो उठी तो उसके बिस्तर के सरहाने पर एक छोटी सी 4 साला बच्ची खड़ी थी। इस बच्ची को वो रात को यहाँ आते देख चुकी थी। यकीनन ये एसएसपी दावर की बेटी थी। तो उसकी बीवी कहाँ थी? इस सवाल का जवाब नैना को नहीं मिल सका। वो बच्ची सारे जहान की मासूमियत अपने अंदर समोए नैना को देख रही थी। आप कौन हैं और मेरे घर में क्या कर रही हैं? छोटी सी गुड़िया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें पटपटाते हुए नैना से पूछा। मेरे पास आओ। नैना ने उसे मोहब्बत से अपने पास बुलाया। नूर छोटे छोटे कदम उठाती नैना के पास गई और उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। नैना को उस छोटी सी गुड़िया पर बेइंतहा प्यार आया था। काफी देर तक नूर नैना से बातें करती रही। फिर नैना नूर को लेकर बाहर आई तो दावर किचन में खड़ा नाश्ता तैयार कर रहा था। वो थाने जाने के लिए बिल्कुल तैयार था और वो इस वक्त अपने यूनिफॉर्म में मौजूद था। अच्छा हुआ तुम भी उठ गई, बैठ जाओ, नाश्ता तैयार है, दावर ने हल्के फुल्के लहजे में कहा। नैना ने इर्द गिर्द देखा। घर में उन तीनों के सिवा और कोई नहीं था। आपकी वाइफ कहाँ है? नैना ने झिझकते हुए दावर से सवाल किया। दावर के नाश्ता बनाते हुए हाथ चंद लम्हों के लिए थम से गए। उसके चेहरे पर एक तारीक सा साया लहरा गया। नूर, जाओ अपने रूम से अपने टेडी को लेकर आओ, दावर ने नरम नजरों से नूर को देखते हुए कहा। वो जल्दी से नैना की गोद से उतरी और अपने कमरे की जानिब भागी। मैं नूर के सामने उसकी माँ का जिक्र नहीं करता। वो माँ जैसे लफ्ज से भी वाकिफ नहीं है, दावर ने सर लहजे में कहा।
नैना ने हैरानी से दावर को देखा था, मगर कुछ कह नहीं सकी थी। जब नूर पैदा हुई थी, इसकी माँ हम दोनों को छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वो किसी और को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। मैं भी कब तक उसे जबरदस्ती अपने साथ रख सकता था, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। उसने किसी और से शादी कर ली और यहाँ मैं अपनी बेटी के साथ खुश हूँ। दावर ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाए हुए कहा था। नैना को बेइख्तियार ही उस छोटी सी बच्ची पर तरस आया, जो माँ के नाम से भी वाकिफ नहीं थी। तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं और नूर जा रहे हैं। आज मैं तुम्हारे केस की सारी मालूमात करूंगा। दावर ने नैना को देखते हुए कहा। नूर को कहाँ ले जा रहे हैं? नैना ने झिझकते हुए दावर से पूछा। वो जाने क्यों दावर से नूर के बारे में सवाल कर रही थी। नूर को मैं एक औरत के पास छोड़ देता हूँ। वो नूर जैसे और भी बच्चों का ख्याल रखती है। मैं उसे काफी सालों से जानता हूँ, इसीलिए मुतमईन हूँ। वापसी में नूर को अपने साथ ले आता हूँ। दावर का लहजा खाली खाली सा था। आप नूर को मेरे साथ ही छोड़ दें, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। नैना ये बोलकर एकदम खामोश हो गई। दावर ने गहरी नजरों से नैना को देखा। वो अपनी ही नजरों में शर्मिंदा सी हो गई थी। दावर उसके चेहरे के बदलते रंग साफ देख सकता था। दावर की खाक नजरों से एक कातिल और मासूम का फर्क छुपा नहीं रह सका था। वो जान गया था कि ये लड़की अपने शौहर को कत्ल नहीं कर सकती। दावर ने उसके चेहरे और हाथों पर जख्मों के लातादार निशान देखे थे, जो यकीनन उसके मरहूम शौहर की मरहूने मिन्नत थे। वो लड़की बेवा हो गई थी। कोई भी उस लड़की का दुख नहीं समझ रहा था, बल्कि उसके ससुराल वालों ने उसे जेल भिजवा दिया। उसके घर वालों ने उससे किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया, बल्कि उससे अपना हर रिश्ता तोड़ दिया। दावर को जाने क्यों इस लड़की पर तरस आया था। ठीक है, तुम नूर का ख्याल रखना, दावर ने नरम से लहजे में कहा और टेबल पर नाश्ता लगाने लगा। नैना भी होश में आई थी और जल्दी से किचन से प्लेटें उठाकर टेबल पर रखने लगी। तुम बैठ जाओ, दावर ने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा और जाकर नूर को उठाकर लाया। नूर एक बार फिर से नैना की गोद में चढ़ गई। नैना ने उसे प्यार किया था। कुछ देर बाद दावर थाने जाने के लिए निकल खड़ा हुआ और नैना नूर के साथ मसरूफ हो गई। दावर नैना के केस की तफ्तीश कर रहा था। ये केस इतना मुश्किल नहीं था। इमरान का पोस्टमार्टम करवाने से सारी सच्चाई सामने आ गई थी। नैना बेगुनाह साबित हो गई थी। दावर ने घर आकर नैना को सब कुछ बताया तो नैना कितनी ही देर कुछ भी बोल ना सकी। उसके अपनों ने उसे तन्हा छोड़ दिया था और एक गैर शख्स ने उसे बेगुनाह साबित करवा दिया था। अगर तुम अपने घर वापस जाना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें वहां छोड़ आता हूं। दावर ने सोफे पर सर झुकाए बैठी नैना को देखते कहा। मेरा कोई घर नहीं है। मेरा सौतेला बाप मुझे कभी भी कबूल नहीं करेगा, नैना ने भीगे हुए लहजे में कहा। आप ऐसा करें, मुझे किसी दारुल अमान छोड़ाएं। नैना ने पहली बार दावर की तरफ देखा था और वो संजीदगी से इसे ही देख रहा था। तुम यहाँ रह सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। एक जहन्नुम से बचाकर तुम्हें यूं बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता, दावर ने संजीदा लहजे में कहा। तो नैना उसे देखकर रह गई। नैना की इद्दत मुकम्मल हो गई थी। नैना अभी भी दावर के घर में ही रह रही थी। सच तो ये था कि नैना का इस घर के सिवा कहीं और ठिकाना नहीं था। नूर सारा दिन नैना के साथ रहती थी। नैना भी नूर से बेहद मोहब्बत करने लगी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहती थी, मगर नैना कोशिश करती कि दावर से उसका सामना कम ही हो। दावर भी नैना को नूर को सौंपकर मुतमईन हो गया था। उस रोज दावर देर से घर आया। नैना किचन में खड़ी नूर के लिए दूध गर्म कर रही थी। दावर आकर किचन के दरवाजे में ही खड़ा हो गया।
नैना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दावर ने नैना को मुखातिब किया। नैना ने सवालिया नजरों से दावर की तरफ देखा। नैना, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मुझे तुम पहली ही नजर में पसंद आई थी। मैं इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहता हूँ। तुम वैसे भी कब तक ऐसे यहाँ रह सकती हो? अब मोहल्ले वालों को तुम्हारे यहाँ रहने पर एतराज होने लगा है, इसलिए बेहतर है कि हम इस रिश्ते को कोई नाम दे दें। बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा और ना ही तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहा हूँ। दावर ने नरम लहजे में कहा था। नैना का सर झुका हुआ था, जाने वो किन सोचों में गुम थी। अच्छे से सोच लो कल तक। अगर इनकार करना हो तब भी बता देना, और अगर इकरार हो तब भी बता देना। दावर अपनी बात करके वहां से जा चुका था। नैना साकित सी खड़ी रह गई थी। उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो हकीकत यही थी कि दावर उसे जो कुछ कह कर गया था वो सब कुछ सच था। उन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं था, फिर वो यहाँ कब तक रह सकती थी? नैना ने दावर को इस रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी दे दी। दावर अगले ही दिन नैना से निकाह कर गया। नैना को उस लम्हे शिद्दत से अपनी माँ की याद आई थी, मगर वो जानती थी कि उसका सौतेला बाप कभी भी उससे मिलने नहीं देगा, क्योंकि वो सबकी नजरों में कातिल थी। नैना लाल रंग के जोड़े में दावर के कमरे में मौजूद थी। जब दावर सफेद कमीज शलवार पहने कमरे में आया था, दावर नैना के सामने आकर बैठ गया और उसने नैना का हाथ थाम लिया। नैना लरस सी गई थी। दावर की नजरों में उसके लिए मान और एहतराम था, तो उसने कभी भी इमरान की नजरों में अपने लिए नहीं देखा था। मैं वादा करता हूँ तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। मेरी जात से तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। बस मुझ पर एक एहसान कर देना, मेरी बेटी को दिल से कबूल कर लेना। मैं दुनिया की सारी खुशियां लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। दावर ने उसका हाथ थामे हुए एक जज्ब की कैफियत में कहा था। नैना ने नजरें उठाकर दावर को देखा। उसकी आंखें झिलमिलाने लगी थी और फिर वो बेइख्तियार ही रोने लगी।